Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to summarize your unit number 35th, which is last unit of AFM subject. Okay. So, that is budget and budgetary control. Okay. तो इस तरीके से हम अपने सारे यूनिट्स को आपका कंप्लीट कर लेते हैं एंड बिलीव मी गाइस अगर आपने ये सारे सेशन देख लिए सो यू आर 50% प्रिपेयर फॉर AFM सब्जेक्ट ओके इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा in your upcoming examination. Just you need to practice about these particular units. So for that, very soon I'll come up with a practice series where we will practice number of question based on all these 35 units. Okay. So let's have a quick look about the unit number 35, which is budget and budgetary control. So we have basic introduction, concept of budget and budgeting, types of budgets, preparation and monitoring of budgets, budget control system, advantages of budgetary control, limitation of budgetary control, implementation of budgetary control, zero based budgeting, program budgeting, and performance budgeting. So these are the subtopics which are generally part of your unit number 35, which is budget and budgetary control. Okay, now everybody knows about what is budget. So budget is a financial plan for a given time duration. It shows income and expenditure, sources of income and areas of expenditure for any for a specific time duration for any organization. जैसे इकोनॉमिक बजट आता है आपका अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया तो वैसे ही आपका ये भी जो काम करता है ठीक है सो बजट इज income expenditure documents ठीक है it's a financial plan of a corporation that covers a specific period. It is an expression of income and expenditure over a certain period. Budget are plans that cover all functional areas of a business for a specific future period. Okay, so budget is a system that is related to plan and control. Therefore budgets also include budgetary control. ठीक है देखो आपने कभी भी अगर प्लानिंग को स्टडी किया होगा सो योर प्लानिंग विल डिसाइड योर कंट्रोल सेंटर्स ठीक है तो जिस लेवल के प्लान है लेट्स से फॉर अ सिंपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ टूर एक ट्रिप पे आप जा रहे हैं ठीक है योर बजट इज सपोज दैट 50,000 सो अगर आप चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि लाइक दिस इज द एरिया जहाँ पे जैसे रहने पे हम इतना खर्च करेंगे ट्रैवल पे इतना खर्च होगा एंड आपका फूड एंड अदर्स का इतना होगा शॉपिंग का इतना होगा सो यू हैव दैट 50,000 का फर्दर बाइफर्केशन ठीक है तो कहाँ से 50,000 आएगा दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम एंड कहाँ कहाँ पे खर्च होगा सो अगर कोई भी ऐसा एरिया जो ब्रीच होगा दैट मीन्स इट विल मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बजटिंग सेम एज हियर ऑल्सो राइट तो बजट एंड दैट कंट्रोल इज कि कौन से चीज पे कितना खर्च होना है सो ये एक ही सिक्के के दो पहलू आपके बजट एंड बजटरी कंट्रोल राइट so in a nutshell a budget is concerned with policy framing whereas control is the budgetary implementation of the policy. In a narrow sense budgetary control is a control techniques wherein actual cost is compared with the budgeted cost आपका ठीक है तो ऐसा जैसे ट्रेवल पे हमने बात किया या कोई और एरियाज so budgetary control does not merely involve the matching of estimated expenses to actual expenses. In addition, it involves placing responsibility for failures also. That is also known as root cause analysis, right? The periodic checking of income, cost, and expenses related to the administration of the budget is known as budgetary control, right? So, a basic introduction about budget and budgetary control. Now, budgetary control, ये इसका importance क्या है? How it is effective in the organization? So, it will help you in the आपका efficiency, production efficiency or optimal utilization of resources, success of costing records, future planning, cost control, helpful in policy framing and control on income and expenditure. So these are the areas जहाँ पे बजटरी कंट्रोल्स आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हेल्प करता है ठीक है सो फीचर्स ऑफ अ बजट बहुत ही बेसिक यूनिट है एंड यू कैन एक्सपेक्ट हाफ मार्क्स एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस यूनिट टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर वो क्वेश्चन रहता है विल टॉक अबाउट दैट वन आल्सो ठीक है सो बजट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट अ बजट इज कंसर्न्ड अबाउट concern for a defined future period.
It is a written documents. A budget is detailed plan of all economic activities of a business. All the department of business unit cooperate for the preparation of a budget. A budget means to achieve business, and it is नॉट इन एंड इटसेल्फ, ठीक है. जैसे जैसे एक्टिविटीज आपका चलेंगे और दैट गोइंग कंसर्न वही आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ बजट, अब अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट का, तो बहुत सारे टाइप्स आपके हैं बजट के, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे आपका सेल्स बजट, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट, मास्टर बजट, कैश बजट, तो ये सारे क्या होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक इंट्रोडक्शन, ठीक है. So budget may be classified into various categories depending upon the base adopted to prepare it. Budget may be classified as per the scope of the coverage or the functions covered by them. जैसे आपका सेल्स बजट है, देखिए आपका प्रोडक्शन बजट है, ओवरहेड बजट है, कैश बजट है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है. These are called functional budget. तो ये जो classification है that is as per function wise, so it is known as functional budgeting. The capacity and efficiency to which they are related, based on this the budget is fixed and flexible. ठीक है, तो दो तरीके से आपका fixed budget generally आपका जो long term होते हैं, and flexible is basically day to day functioning of the organization. The condition on which they are based on this we have budget आपका basic and current budgets, ठीक है. The period which they cover, based on this we have long term and short term budget. तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस जो आपको बजट के अंदर या टाइप्स ऑफ बजट के अंदर आपका देखने के लिए मिलेंगे. सो लेट्स समराइज ऑल दीज टाइप. फर्स्ट वी हैव सेल्स बजट, ठीक है. फंक्शनल क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. सो एज पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप इज सेल्स बजट. So your sales budget will decide your production budget, and your production budget will decide your raw material budget. Raw material budget will decide your purchase budget, ठीक है. ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक आपके रहते हैं, ठीक है. So sales budget is basically a sales estimation given by the sales team, ठीक है. कि let's say they are planning कि we will sell 1 lakh marker in a financial year, in this particular financial year. तो 1 लाख मार्कर्स हमें आपका जो प्रोडक्शन बजट है, दे हैव टू प्रोड्यूस 1 लाख मार्कर्स. तो उसमें हमारे पास कितने अवेलेबल है और कितना आपका कितने का सप्लाई है, कितना और का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज द वन, ठीक है. सो फर्स्ट आपका सेल्स बजट. प्रोडक्शन बजट विच इज बेस्ड ऑन सेल्स, इन्होंने नंबर दिया कि वी विल सेल 1 लाख मार्कर्स. तो आपका अब ये 1 लाख मार्कर का सेलिंग कैसा होगा इन अदर्स, आपका इनकम एक्सपेंडिचर कॉस्ट सब यहाँ पे रहेगी, ठीक है. बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन बजट विल डिसाइड कि हमारे पास ऑलरेडी कितना है और हमें कितने मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है. और उसके लिए रॉ मटेरियल आपका बजट बनेगा कि कितने रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं और कितने का और परचेज करना पड़ेगा, ठीक है. देन वी हैव परचेज बजट फॉर दिस, एंड वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेसिटी बिल्डिंग पे खर्च होगा, बेस्ड ऑन इट इज एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट like property, plants, equipments and all. Then we have cash budget. Cash budget is basically जो inflow and outflow of cash, कि कहाँ से किन sources से कितना आएगा कितना जाएगा, ठीक है. And the combination of all these budget is generally known as, after all these budget, after preparing your cash budget, we will prepare a budget that is known as मास्टर बजट, ठीक है. तो इसके बाद हम लोग फाइनली क्या बनाते हैं, आपका मास्टर बजट आपका प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. सो मास्टर बजट इज बेसिकली फाइनल आउटकम ऑफ ऑल दीज गिवन एरियाज, आपका जितने भी डिफरेंट छोटे छोटे बजट्स हैं उन सब के लिए. तो जल्दी जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं. सेल्स बजट, study of past sales to determine the trend in the market, estimate made by the salesman various market of the company's product, change of business policy and methods, government policy, control, rule and guidelines, etc., potential market and availability of material and supply. So that is, these are the components which are decided under the sales budget, ठीक है. फिर आते हैं आपका प्रोडक्शन बजट के ऊपर. So production budget is prepared on the basis of estimated production for the period. Usually the production budget is based on the sales budget. Okay? So at the time of preparing the budget, the production manager will consider the physical facility like plant, power, facility, material and labor, etc. Okay? So analysis of plant utilization and आपका work in progress budget. So these are generally part of this one. Then we have raw material based on the production budget, ठीक है. कितना raw material available है उसका inventory and all, so they are generally part of this one. So direct material budget is prepared with the
with an intention to determine the standard material cost per unit, and consequently it involved the quantities to be used and the rate per units. This budget shows the estimated quantity of all the raw materials and component needed for production demanded by the production budget. So the material use budget is in quantities, the material purchase budget in both quantities and financials आपका। तो ये दो चीजें जो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। Purchase budget now. So the main function purpose of purchase budget is it designate cash requirement in respect of purchase to be made during the budgeted period. It is a it is facilitate the purchasing department to plan its operation in time in respect of purchases, so that long term forward contract may be organized, right? Credit policies या others जो आपके रहते हैं। So then we have capital and capital expenditure budget, not in आपका capital expenditure budget, sorry, ठीक है। So capital expenditure budget like expenditure on creation of permanent assets, like जहाँ पे हम लोग आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज करें। वी आर सेटिंग अ न्यू प्लांट बेस्ड ऑन दी आपका सेल्स नंबर्स इन अदर्स या अदर्स जो आपके रहेंगे, ठीक है। सो दिस बजट स्टैंड फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फिक्स एसेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ बजटेड पीरियड। दिस बजट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड देन द अदर वन, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो एरियाज रहेंगे। कैश बजट वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। So the cash budget is a sketch of the business estimated cash inflow and outflows over a specific period. Cash budget is one of the most important and one of the last to be prepared. It is detailed projection of cash receipt from all sources and cash payment for all purposes and the resultant cash balance during that particular period, ठीक है। तो जिसमें आपका cash sales, payment by the debtors, the sales of fixed assets, the issue of new shares and others, they are generally come under the cash budget, ठीक है। तो ये सारे बजट आफ्टर दिस वी प्रिपेयर्ड अ सिंगल शीट दैट इज कॉल्ड मास्टर बजट, ठीक है। फंक्शन वाइज में अगर जाते हैं, सो मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग वेरियस फंक्शनल बजट लाइक सेल्स, प्रोडक्शन बजट, दिस एंड कैश बजट। तो ये जो पिछले जितने भी टाइप ऑफ बजट हमने पढ़े उन सब का एक समरी शीट दैट इज नोन एज मास्टर बजट, ठीक है। तो वो आपका एक फाइनल बजट रहेगा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपका यूज करेगा फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, अगर इन दो एरियाज को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो आपका फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। सो फिक्स इज लाइक काइंड ऑफ वन टाइम एक्सपेंडिचर and flexible is kind of variable, ठीक है, with vary with the number of production and all, ठीक है। So it does not change with the level of activity actually attained. It practice, however, a fixed budget is revised if a business condition undergo a basic change or if due to any reason actual operation are widely different from the planned one, okay. It is designated for a specific plan output level. It is not adjusted to the actual level of activity at periodic reviews, which compare the budgeted and actual one. Normally, fixed budget are established for a shorter period of a time during which the actual output and budgeted output are not anticipated to differ much from each others, right? So अगर हम लोग बात करें flexible budget का, so flexible budget it recognize different cost behavior patterns. It designate to a change in volume of output. It prepare in such manners that it give the budgeted cost for any level of activity. It recognize difference between fixed semi variables and variable cost आपका, ठीक है। तो बेसिकली फिक्स आपका काइंड ऑफ आपका जो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए अमाउंट जहाँ पे वेरिएंस आने के चांसेस काफी कम है, एंड फ्लोटिंग और वेरिएबल इज जहाँ पे आपका विच वेरी विद द नंबर्स। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका जो कि अलग अलग कॉस्ट हेड्स को आपका असाइन किए जाएंगे। देन वी हैव बेसिक एंड करंट बजट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देन विल कम टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बजट, ठीक है। सो बेसिक बजट is prepared for use over a long period of time without any changes. This is attainable only under standard condition, as current condition are not taken into consideration for the preparing this budget.
Budget is prepared for the use over a relatively shorter period of time and take into account the current conditions. तो यहाँ पे आपका like काइंड ऑफ की एक फिक्स टाइप ऑफ कंडीशंस रहेंगी फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो करंट सिचुएशन होगा उसके हिसाब से वो आपका चेंज होता रहेगा. काइंड ऑफ वेरिएबल आपका ये आपका फिक्स हो जाएगा. ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस as the target laid down in the current budget take into account current conditions, it considered to be more useful than the basic budget, क्योंकि situations क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म, दिस इज शॉर्ट टर्म, this is fixed, this is variable, this is fixed, this is variable. ठीक है, so long term budget, a budget which is prepared for a period longer than a year, normally considered to be a long term budget. As the period is long, the precise detail of various items are not included in this particular budget. It is more helpful in business forecasting and forward planning. For example, capital expenditure budget contain planning for a period beyond a year. Similarly, research and development budget involves strategic planning over a longer period. और जो आपके छोटे छोटे जैसे डे टू डे सेल्स एंड अदर्स हैं, दे आर जनरली पार्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म बजट. तो ये आपका बजट एंड बजट टाइप्स. ठीक है, अभी तक का जो हमने एरिया डिस्कस किया. नाउ वी हैव द अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट व्हिच इज बजटरी कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम, CIMA has defined the budgetary control as, so budgetary control is the establishment of budget relating to the responsibilities of executives of a policy and the continuous comparison of actual with the budgeted result. ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी समझा, let's say we have this plan. ठीक है, कि जहाँ पे sales budget is this, raw material budget is this, and let's say purchase budget is this, आपका कैश बजट इज दिस. ठीक है, तो ये आपके अचीव हो रहे हैं एक्चुअल और एस्टिमेटेड के बीच में आपका जो डेविएशन है वो किस तरीके से, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वन. तो हम लोग लाइक कंट्रोल सिस्टम विच विल हेल्प टू अचीव दीज पर्टिकुलर नंबर्स, like we generally we can expect exactness from the managers कि उस लेवल पर आपका उन बजट्स को आपका लेके चले. ठीक है, सो जिसमें मेन एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, तो एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम बहुत बार पूछा जाता है. इट इनहेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस थ्रू द बजट. तो अगर प्रॉपर कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं देयर विल बी अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो हर कोई आपका अगर जहां पे भी मिस होगा सो वी कैन आस्क देम कि भैया कहाँ पे गड़बड़ हुआ है इन अदर्स. ठीक है, तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी. दूसरा, इट लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत आसान है. इट लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस फंक्शनरीज of the organization, different departments and all. It encourages culture of proactive thinking कि problems मतलब जो फ्यूचर में आने वाले उनको पहले हम लोग सोचें, उनके लिए प्लान करें आपका. एंड एक्शंस एज द टारगेट आर नोन बाय द फंक्शनरीज. राइट, इट लीड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी while including the culture of accountability. It make performance evaluation of various functionaries more transparent. ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट था, जैसे सेल्स बजट था, सेल्स वालों का आपका परचेज बजट था, तो उन्होंने विद इन बजट आपका काम किया है या वो आपका उसको मिस किए हैं तो व्हाट आर द रीजन. ठीक है, वो सब आपका जो वहां पे आपको जानने में हेल्प मिलेगा. और अगर ऐसी चीजें होती हैं जहां पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन वो आपका इफेक्टिव तरीके से होगा और साथ ही साथ आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको इजीली आपका अचीव किया जा सकता है. ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, सो वी हैव बजट सेंटर्स. ठीक है, बजट सेंटर्स क्या होते हैं? यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट, जैसे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट इन अदर. अब बजट सेंटर में एनकम्पास सेवरल कॉस्ट सेंटर्स, जिसके नीचे आपका जैसे प्रोडक्ट वाइज या अदर्स इस तरीके से अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं. ठीक है, बजट कमेटी आपका जनरली बोर्ड लेवल कमेटी या सीनियर मैनेजमेंट लेवल कमेटी हु डिसाइड द बजट. This may consist of a senior members of the organization, departmental head and executives, जो आपका ओवरऑल बजट को मैनेज करेंगे, डिसाइड करेंगे. बजट ऑफिसर आपका कंट्रोल द बजट एडमिनिस्ट्रेशन. सो जिसका जॉब क्या होगा? लाइजिंग बिटवीन द बजट कमेटी एंड मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट प्रिपरेशन.
डीलिंग विद द बजटरी कंट्रोल प्रॉब्लम्स इफ देयर इज एनी डेविएशंस, तो क्या क्यों प्रॉब्लम है या अदर्स, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ensuring the deadlines are met, educating people about the budgetary control. तो बजट सेंटर, बजट कॉस्ट एंड आपका बजट ऑफिसर्स एंड बजट कमेटी, दीज आर द फोर मेजर टर्मिनोलॉजीज. बजट मैनुअल्स जो फाइनल हमारे पास है, मैनुअल्स क्या होते हैं आपका बेसिकली, जैसे लेट्स से यू परचेज अ मोबाइल फोन, तो उसका एक मैनुअल आता है, ठीक है, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर वन. यहाँ पे भी बजट मैनुअल्स क्या होंगे कि जो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो आपका उसमें परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनके पास एक क्लियर कट आपका, ठीक है, इफ यू आर परचेजिंग समथिंग और सम रॉ मटेरियल और एनीथिंग एल्स या लेबर कॉस्ट एंड अदर्स, तो उसका आपका स्टेप टू स्टेप जर्नी, सो दैट इज मैनुअल्स, ठीक है. सो जिसमें आपका चार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल ऑफ बजट प्रोसीजर्स, contain account codes for item of expenditures and revenue, timetable, timetable the process, clearly define the responsibility of person involved in the budgeting system, ठीक है. तो ये पूरा आपका एक चार्ट, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, जो आपको हेल्प करेगा किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट, ये सारी चीजें आपका जो बजट मैनुअल्स के अंदर दी जाती है, ठीक है. अब एक होता है जीरो बेस्ड बजट, आई होप आपने बहुत बार ये सुना होगा. तो जहां पे जीरो बेस्ड बजट इज लाइक जब एक्टिविटीज हो जाती है तो उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आपका इक्वल लेवल पे लाया जाता है. सो वेयर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब आपका एक्सपेंडिचर पहले हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको अकाउंट कर रहे होते हैं कि हाँ लाइक दिस इज द एक्सपेंडिचर, इसके लिए इतना आपका खर्च किया गया और दिस वाज द इनकम आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. सो वेयर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज नोन एज जीरो बेस्ड बजट. So a budgeting method that require all expenses to be justified. कहाँ पे खर्च किया है ना others, so that is justified and approved in the new budget period, typically each years. Zero based budgeting is when your income minus your expenses equal to zero, ठीक है. तो जहाँ पे मतलब ये जनरली क्या हो रहा है आपका, जैसे आपने बजट बनाया, इम्प्लीमेंट किया और आपका पूरा साल खत्म हुआ, देन आपका जो जो खर्च हुए हैं और माइनस आपका इनकम, इट शुड बी इक्वल टू जीरो. आपने एक परचेज, आपने प्लान किया था कि वी विल परचेज अ मशीन वर्थ ₹5 लाख, एक्चुअल में आपने उसको सपोज दैट 5,50,000 में परचेज किया. So during zero based budget, we will show the expenditure 5.50 lakh and your income will be 5.50 lakh. We have created an asset of worth rupees 5.50 lakh. तो इस तरीके से आपका जो लेबलिंग होगा, because budget is estimation, ठीक है. तो वहां पे जब वो एक्चुअली वो चीज हो जाती है तो उसके बाद उसको प्लानिंग. Zero based budgeting, after budgeting system has been in operation for some time, there is a tendency to next year's budget to be justified for the reference of the actual label being achieved at present. In fact, this is part of the financial analysis discussion so far, but the proper analysis process take into account all the changes which should affect the फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है. तो अगर उसकी वजह से कोई चेंजेस आपका हो रहा है वो भी आपका यहाँ पे डिस्क्लोज होगा. सो दिस इज इट. तो ये आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बहुत ही छोटा सा यूनिट और थोड़ा मतलब like you can expect 1 marks question based on this particular unit. Usually it is like there are 2 questions or it can be 1 question for 1 marks also, right? तो I hope ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है. तो कैसा लगा, कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए और चीजें आपका क्लियरली समझ में आ रही है नहीं ये भी आप बताइए. इसके साथ साथ हम लोगों के चारों मॉड्यूल आपका कंप्लीट होते हैं आज, ठीक है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. सो यूनिट 1 टू यूनिट 35 सारे मैंने आपको 1 to 1 सारे 100% आपका कवर कराएं. एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपने ये सारे देख लिए और समझ लिए, सो योर 50% प्रिपरेशन इज डन अबाउट द एएफएम सब्जेक्ट. उधर आपका पीपीबी की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं दिशा मैम के द्वारा. नाउ आई विल स्टार्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसके कुछ मॉड्यूल आपका मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है. तो रेगुलर बेसिस पे आप इनको देखते रहिए. इनके कंपाइलेशन भी मैंने आपको दिए हैं, जैसे कई बार आपको क्या होता है कि एक वीडियो के अंदर सारी चीजें चाहिए, वो भी हम लोगों ने करके आपको दिया है. तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं. और कोई डाउट आते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी क्वेरीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सेशंस, राइट. तो अब आपको सिर्फ चाहिए एएफएम के अंदर, अभी आई गिव यू 10 to 15 डेज. जिन लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया उनको इसको खत्म करने के लिए आप एक बार पूरा कंप्लीट करें. देन वी विल कम अप विद यूनिट वाइज एमसीक्यूज
तो जहां पे हम लोग उसको आपका दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वो सारे नोट्स जो आप जिनको गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर कोई भी अदर हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।